Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Now, this is our chapter that is known as a whole numbers. As you see on your screen, it is our first page of this chapter that is whole numbers. And you all know about whole numbers. So, before we discuss about whole numbers, we'll first define here as what are natural numbers. As you know that counting numbers are known as natural numbers. So those numbers which we use to count, they are known as natural numbers. And they start, you all know they start from 1, 2, 3, 4, 5, and so on. And as we know that we use these numbers to count the numbers, and they start from 1, 2, 3, 4, and so on. And now there is a representation for the natural numbers. As you know that as we in science we represent carbon by C, there is a symbol for that. In the same way here natural numbers are denoted by capital N. Whenever there is written as capital N, that means the set of natural numbers. And then we have our portion here that is whole numbers, जो हमारा चैप्टर है, and we will define here as what are whole numbers. So whole numbers are the numbers, so we can say natural numbers plus 0. This set of numbers is known as whole numbers. The set of natural numbers plus 0. When we include 0 in the set of natural numbers, we will get another set that is known as whole numbers. So only difference between whole numbers and natural numbers is that there is one extra number that is 0. And the 0, 1, 2, 3, 4 and so on forms a set of whole numbers. Whole numbers. And as you see here, the set of natural numbers along with 0. Set of natural numbers along with 0 gives us a set that is known as a whole numbers. And now their representation is, they are all whole numbers are represented by a letter, that is, they are denoted by a letter W. So this is the representation of whole numbers. So whole numbers are those numbers, the set of natural numbers along with 0. And they are denoted by a capital letter that is known as a W. When there is a, jahan par bhi likhi hoga W, that means the set of whole numbers. And here we will look at the smallest natural number is 1 and the first natural number is 1. And you remember this, 0 is not a natural number. So all natural numbers are whole numbers, but all whole numbers are not natural numbers. So there is a difference of 0 in the set of whole numbers, जो उसको अलग बनाती है natural numbers से. So we can say natural number जो है वो सभी whole numbers में, सभी whole numbers natural number में नहीं. जो यहाँ पर सिंबल बना के हैं इस तरीके से, ये है natural numbers और ये सभी इंक्लूड है किस सेट में, that set is known as a whole numbers. So ये था हमारा पहला पोर्शन, that means the introduction page जो आपका है, that is natural numbers and whole numbers. Now we will move to next. So that is our successor and predecessor. And simply you remember this as so this is our successor and predecessor. Successor simply means when we add a number to, say 1 plus 1, we will get a number that is 2. So this 2 is the successor of 1. In the same case, 3 is the successor of 2. So that means when we add any number, say a number 10, we will add a number 1 to this, we will get another number, that number is known as this is the successor of 10. So that means a number which comes after this number.
So when we add any number, say x plus 1, we will get a successor of this x. In the same way, we can find out the predecessor, and predecessor simply means 1 minus a number. Say if we have 12, we will subtract 1 from this, we will get 11. In the same way, if we have 13 minus 1, we will get 12. So 12 is the predecessor of 13, and this 11 is the predecessor of 12. And so simply when we subtract a number from any number, we will get a predecessor of that number. तो याद रखना इतना ही, अगर आगे जाना है we will get a successor, अगर वापस जाना है तो that will we get a predecessor. So this is our predecessor. And here 0, if we say a predecessor of natural number 1 has a predecessor, we can say अगर group of natural number में जाएंगे तो अब इसका कोई नहीं, बट अगर हम होल नंबर्स में जाएंगे इसका प्रेडिसेसर 0 है, मगर 0 का कोई प्रेडिसेसर नहीं है. क्यों? क्योंकि 0 जो है वो लीस्ट होल नंबर है, उससे आगे कोई होल नंबर नहीं है, सभी होल नंबर्स उसके बाद. तो हम कह सकते हैं 1 का प्रेडिसेसर 0 है, 0 का प्रेडिसेसर कोई नहीं है. एंड बट अगर हम 0 का सक्सेसर देखेंगे दैट विल बी एस 2, 1 0 का 1 आ जाएगा, 2 का 3 आ जाएगा. In the same way we can find out the predecessor of those numbers. Then we have another portion of that is our representation of whole numbers on a number line. So here first we will discuss about what are whole numbers, this number line. So we'll define here as what is number line. तो number line simply एक line है जिस पे हम numbers को represent कर, but हम deal कर रहे हैं whole numbers के साथ. तो उसके बाद सबसे least number 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 and so on. And इनके बीच में जो है वो है unit distance, 1 unit distance है इनमें से हर एक. यहाँ पर इसकी definition लिख के भी है, a number line is a representation of numbers on a line with equal distances between the two consecutive numbers. इन दोनों numbers के बीच में या इन दोनों के बीच में consecutive numbers जो होंगे उनके बीच में equal distance. So अगर हम ऐसे याद रखेंगे कि नंबर लाइन सिंपली एक स्ट्रेट लाइन नंबर लाइन है जिस पे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और उन नंबर्स के बीच में आपस में इक्वल डिस्टेंस. और सिंपली जहां पर आप लोगों ने पढ़ा ही है, हम पढ़ रहे हैं होल नंबर्स, तो पहला हमारा लीस्ट वैल्यू वहीं से शुरू होगा. और आपको यहाँ पर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इनकी रिप्रेजेंटेशन. जैसे अगर हमारे पास एक नंबर लाइन है, ये हमें 3 को दिखाना है. So this is our 1, 2, 3, 4, 5. हमें 3 को दिखाना, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन. इस तरीके से आप नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो. So 0 is the smallest whole number. All other whole numbers lie on the right side. अगर आप यहाँ देखोगे सबसे least number जो है वो 0 है, बाकी सारे numbers उसके बाद आ रहे हैं. And 1 is the smallest natural number और all other natural numbers lie in the right. अब 1 जो है वो सबसे least है, उसके बाद बाकी हमारे natural numbers हैं. So simply हम यहाँ पर अच्छी तरीके से इनको इस तरीके से represent कर सकते हैं एक number line पे, जिसपे आप simply scale ले सकते हो and you can draw that. वहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर की difference है, तो वहाँ पर आप उन numbers को 1, 2, 3. अब अगर इसी लाइन जो यहाँ पर दिखाया गया है, how we can show a predecessor and the successor. So if we say 4 plus 1, that will be the successor of 4, and if we 4 minus 1, that will be the predecessor of 4. 3 is the predecessor of 4. So in this way we can represent a number on the number line. Then we have another portion that is the operation of whole numbers. So this is our next topic. So next topic is operation on whole numbers. So here, तो मैंने अभी पहले कहा भी था, ये जो आपका पहले है एग्जाम्पल, इसमें आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लिखनी है. प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर वो आप आराम से लिख सकते हो. कोई भी नंबर, say a number x plus 1, we will get a successor of that. And if we have to find out the predecessor, we can subtract if x is any number, any whole number, और इससे -1 करेंगे, we will get a predecessor. Now we have another portion of
chapter, this is operation on whole numbers. So how we can add whole numbers on the number line, that here we will discuss that thing, how we can represent a number, say whole number on the number line. The first operation here it is, the first operation is addition. So addition of whole numbers. So how we can represent a whole number on the number line? So as you know that अभी हमने डिस्कस किया एक नंबर लाइन जो है, so if we have to represent 2 plus 5 on the number line, but whole numbers की representation दिखानी है, so first we will draw a number line starting from the 0, then we have 1, 2, 3, 4, 5 and so on, 6, 7, 8, 9. So this is our number line and you can extend, आप और भी extend कर सकते हो. So here we have to add up these numbers. First starting from the 0. क्योंकि हम 0 से ही शुरू करेंगे. First jump we will take from 0 to 2. So this will be our first number, that is 2. And then we will add 5 numbers to this. So we will take a jump directly 5 numbers. So 1, 2, 3, 4 and 5, that will be here. So this will be our sum. So our sum will be, so if we represent this as so if we write down this as a number line like this, we will represent here as 0. This is our 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and so on. Now we have to add from 0 to 2 and then we will take another jump of 5 numbers, we will reach to 7. So the sum of these two is 7. In this way we can represent different numbers on the number line. If we have take another example, say we will take 3 plus 4 and 3 plus 4, that will be equal to again 7. So how we can represent this? So first we will draw a number line like this. So this is our 0, 1, 2, 3, 4, 5. So this is 6, 7, 8, 9. Now we have to show that 3 plus 4. So you know that it is 7. Now how we can represent? First we will take a jump directly to the 3 and then we will take a 4 number jump to the 7. So we will reach to 7. So the total sum of these numbers is equal to 7. So this is the way in which we can represent a number on the number line. Addition of the numbers. So our next slide is about the subtraction of numbers on the number line. How we can subtract the numbers on the number line. So simply first we will draw a number line. Now we have another portion that is known as subtraction of whole numbers. So अगर हमें अब पता है whole numbers किनको कहते हैं, अब उनकी subtraction किस तरीके से, माइनस कैसे करें? अगर आप वहां देखोगे कि एडिशन में हमने क्या किया था, एडिशन में हमने आगे गए थे, राइट साइड की तरफ गए थे, फिर हम वापस फिर और राइट साइड थे. अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन है तो हमें वापस जाना है जीरो की साइड से, लेफ्ट साइड की तरफ से, तब उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे. कहां से क्या करना है वो चीजें अब यहां डिस्कस करेंगे. से इफ वी टेक एन एग्जांपल 7 minus 3, as you see on your book, it is 7 minus 3. So first we will draw a number line. We will take a number, say it is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and then we can आप और भी जा सकते हो, अभी हमें 9 तक. So अब क्या करेंगे, our first number जो है that is our 7. So we will take a jump directly to the 7. तो 7 तक पहुंच गए and then we have to move 3 places towards left, तब सब्ट्रैक्ट करेंगे. So we can take, अब हम एक एक जंप लेंगे, उससे आपको समझ आएगा. बुक पे डायरेक्ट दिखा के है, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो. We will take 3 jumps towards left side and we will reach to the 4 and you know that 7 minus 3 is equal to 4. ये है इसका एक तरीका दिखाने का. आप इसी डायग्राम को ऐसे भी दिखा सकते हो. We will take it directly जैसे आपकी बुक पे दिखा के. So this is our 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Now first we will take a directly jump towards right up to the number 7, and then you can take a 3 number jump to the number 4, and we will get a solution that is 7 minus 3 is equal to 4. So in this way we subtract two numbers. Then we have another portion of this, that is how we can multiply the whole numbers on the number line. As you know that multiplication is simply the repeated addition of the numbers. So first, so if we draw a number line, this is our second topic here on this slide, that is multiplication of whole numbers. So as you know that, we know that multiplication is the repeated addition of the numbers. So simply how we can add in a repetition form. Say if here we have 4 into 2. So we are adding 2 4 times. So 2 plus 2 plus 2 plus 2. So that is our 8. How we can represent this number on the number line in a multiplication form. So this is our multiplication of So this is our multiplication of numbers. Multiplication. So first we will draw a number line. Say we take an example 4 multiplied by 2. So we'll take a number line here. So starting from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So now we have to take simply आप लोगों को दो नंबर्स की जंप लेनी है. So हमें दो लेकर तब कितना आ जाएगा 8. सेम इन यहाँ पर भी हम दो नंबर्स की क्या ऐड करेंगे. रिपीटिशन है नंबर्स की. So we'll take 2. So then another 2, that is 4, then another 2, that is 6, and then another 2 we will reach to the 8. In the same way we can represent any number. So if we take an example of say 3 multiplied by 2 is equal to 6. How we can represent this multiplication? Same, now we will first draw a number line. This is our 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. So यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर आपने देखा ऊपर कि हमने 4 दफा 2 को ऐड किया, we will get 8. How? अब यहाँ क्या है? 3 times we will take 2, we will reach to 6. So we will write down this as 2, then 2, and then 2 we will reach. So it is plus 2, and here it is plus 2. So we can reach up to the 6. In the same way, we can represent different numbers. So if we have here as 2 multiplied by 3, so we'll take, if we draw the number line of this, so we simply represent this as, so this is our number line 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So here we have to take 3 as in 2 steps. So we start from the 0, we will reach to 3, and then we will reach to 6. So this is the way in which we can represent a number on the number line in a multiplication form. Then we have another portion of this, that is division of whole numbers on the number line. कैसे represent करेंगे? So hope आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा. Now we will move to the another point, that is division of whole numbers. So this is division of whole numbers. Whole numbers को आप divide कैसे करोगे? How you can share that? अब वहां पर मल्टीप्लिकेशन है, रिपीटेड एडिशन, डिवीजन है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. आप रिवर्स में, हमें कहां तक जाना है? हमें जाना है 0 तक पहुंचने की कोशिश कि आप किस तरीके से इसको डिवाइड. सो वी विल टेक एन एग्जांपल 12 डिवाइडेड बाय 3. इफ वी हैव टू डिवाइड 12 by 3, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस इन द on the number line. So first we will draw a number line, and we will take here as a point 0. This is our 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. This is our 12. So we have to divide 12 by 3, and when we divide 12 by 3, we will get a solution as 4. So we will take
सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स किस तरीके से, अब हमें क्या लेने हैं, हमें 4 जंप्स लगाने हैं ताकि हम कहां पहुंचे 0 तक, मगर कितने पॉइंट्स लेने हैं साथ साथ में, 3। हमें कैसे नजर 12, when we divide 12 by 3 we will get a solution as 4। तो हमें क्या करना है, ये हमें दिखाएंगे जंप्स कितने लेंगे, ये हमें बताएगा उस जंप में कितने नंबर्स होने चाहिए। सो वी विल टेक ए फर्स्ट जंप up to the 9, then 9 to the 6, then 6 to the 3, and then 3 to the 0. So this is our first jump, this is our second, this is third, and this is our fourth. और 4 जंप्स में हम 0 तक पहुंचे। ये तरीका है नंबर्स को रिप्रेजेंट से। अगर हमें 6 को डिवाइड करना होगा 2 से, एंड यू नो दैट दैट इज इक्वल टू 3, तो 3 जंप्स में हम वापस 0 तक कैसे, डिवीजन में आपको 0 तक आ जाना। सो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। So this is our 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and this is our 7, and then 8. Now when we divide 6 by 2 we will get 3. So now we have to take two numbers at a time, but in 3 jumps में हमें कहाँ पहुँचना है, 0 तक। So starting from the 6 6 2 तो आगे 4 4 से 2 तो आगे 2 एंड 2 से फिर एक और जंप, वो विल रीच टू 0। तो एक जंप ये रही, दिस इज आवर सेकंड, दिस इज आवर थर्ड, और वहां पहुंच गए हम। ये तरीका है नंबर्स को रिप्रेजेंट, एंड वी विल यहां पर रिप्रेजेंटेशन एरो से दिखाएंगे ताकि डायरेक्शन नजर आए कि हम कहां से शुरू कर रहे हैं। सो दिस इज द वे वेयर वी कैन सॉल्व द नंबर्स से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑन द नंबर लाइंस। इसकी एग्जांपल्स आपको साथ साथ देकर है वहां पर। इस तरीके से आप किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन पे। नाउ वी रीच इट आवर चेक पॉइंट फर्स्ट। ये आपको खुद करना है चेक पॉइंट फर्स्ट। मैं थोड़ा आपको आइडिया दूंगा क्योंकि ये क्वेश्चंस हमने सभी किए। चेक पॉइंट फर्स्ट जो है ये आपको खुद करना है। यहां पर आपको इस तरीके से मैं समझो, यहां इसका सक्सेसर लिखना है, इसको सिंपली ऐड करना है 1। इसमें आपको इन क्वेश्चन में +1 करना है, इसमें -1 करना है। एंड व्हाट आर द स्मॉलेस्ट होल नंबर्स, ये आप अच्छी तरीके से करें। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है। अब आप घर में इसकी आपके लिए होम असाइनमेंट आपको खुद करना है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की, डिवीजन की भी सारी चीजें की, वो आपको वहां पर खुद करना। नाउ वी हैव एन अनदर पोर्शन ऑफ दिस, दैट इज आवर प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज of whole numbers। अब हमें होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी विच इज देयर, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। सो इट इज प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स अंडर एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शन। दिस इज अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में और एडिशन में आप कौन कौन सी प्रॉपर्टी करोगे इस्तेमाल जब आप होल नंबर्स के साथ डील करोगे। सो पहली प्रॉपर्टी जो है दैट इज अवर क्लोजर प्रॉपर्टी। सो क्लोजर प्रॉपर्टी में आपको क्या करना है, सिंपली अगर हमारे पास 2 होल नंबर से ए एक होल नंबर है, दिस मीन्स बिलोंग्स टू, ये होल नंबर ग्रुप में बिलोंग करता है। एंड इन द सेम वे अगर हम बी दूसरा लेंगे वो भी होल नंबर्स में बिलोंग करता है। सो व्हेन वी टेक द सम ऑफ दीज टू, सो ए प्लस बी जब करते हैं क्या इनका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा। सो ऑलवेज व्हेन वी टेक अ होल नंबर तो हमारा सॉल्यूशन हमेशा होल नंबर ही आएगा, क्योंकि हमने 2 होल नंबर्स लिए, उन्हीं 2 नंबर्स का होल नंबर्स का सम होल नंबर ही आएगा। फॉर एग्जांपल हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 है, प्लस लिखेंगे 7 एंड वी विल गेट ए 7, एंड ये बिलोंग करता है होल नंबर्स में। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सिंपली हमें समझाते हैं, अगर आप होल नंबर के सेट में से कोई भी नंबर लोगे उसको दूसरे होल नंबर से ऐड करोगे तो हमारा सॉल्यूशन हमेशा एक होल नंबर ही हासिल होगा। तो sum of 2 whole number, this means that when the sum of any 2 whole numbers is always a whole number। 2 होल नंबर्स का सम, सो होल नंबर प्लस होल नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर।
वो हमेशा होगा, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज अ क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स। या आपकी बुक पे यहाँ लिखे हैं, या आपको रिवाइज करनी है, कॉपी पे लिखने की जरूरत नहीं है, खाली आपको चेक पॉइंट अपनी नोटबुक पे लिखने हैं। ये हमने सारी डिस्कस किए हैं पहले, जो मैंने आगे स्लाइड्स में आप लोगों को समझाए थे। So पहली प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, इफ a and b are two whole numbers then a plus b is also a whole number। तो a plus b अगर दो whole numbers हैं, इन दोनों का सम भी क्या होगा, एक whole number। Now we will move to the another property, that is commutative property। So commutative property of whole numbers, so this is our commutative property of whole numbers। Commute means when we change the place of the number। Say if we have commutative property, so this is the commutative property of whole numbers। So whole numbers में commute number कैसे करते हैं, अगर हम प्लेस में से अगर एक जगह एक a है प्लस मैंने b किया, मैं एडिशन में ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हूं। सो अगर आपने a प्लस b कर दिया, क्या वो हमेशा b प्लस a के बराबर होगा? एडिशन में हमेशा होल नंबर्स में ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। मतलब कि अगर हम दो नंबर्स देंगे, उनकी प्लेस चेंज करेंगे। अगर कोई फर्स्ट है, ये फर्स्ट प्लेस पे था और ये सेकंड प्लेस पे है, तो अगर हम यहां देख रहे हैं जो सेकंड प्लेस पे था वो मैंने पहले प्लेस पे लिख दिया, और जो पहले प्लेस पे था वो मैंने सेकंड प्लेस पे, मतलब कि ये पहली प्लेस पे था। सो हमारे नंबर्स जो पहले प्लेस पे थे, पहले प्लेस पे, वो सेकंड प्लेस पे आ गए जब हमने ऐड किया यहाँ पर इक्वलिटी। सो ए यहाँ आ गया, बी पहले ही आ गया। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स, अगर हम स्मॉल में ही लिखेंगे, इफ ए एंड बी are two whole numbers, so then तब हमेशा होगा a plus b equal to b plus a। आप कोई भी एग्जांपल, बट किन में, होल नंबर पढ़ रहे हैं, होल नंबर्स। सो इफ वी टेक 2 plus 3 that is always equal to 3 plus 2, ये हमेशा इन दोनों के बराबर। और आप कोई भी एग्जांपल होल नंबर्स में लोगे, वहां हमेशा इसी के बराबर। अब हम यहां देखेंगे क्या ये सबट्रैक्शन में होगा कि नहीं। वो क्वेश्चन है कि सबट्रैक्शन में होगा कि नहीं, क्या ये सबट्रैक्शन में होल नंबर निकलेंगे कि नहीं। तो सबट्रैक्शन में हमारे पास होना चाहिए a माइनस बी, क्या b माइनस ए के बराबर होगा कि नहीं, ये आप क्वेश्चन। अब हम यहां थोड़ा इसको डिस्कस करेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को उठाएंगे। तो नजर, So we have here, क्या a माइनस b माइनस a के बराबर होगा कि नहीं, कोई भी होल नंबर लेंगे। से अगर हम a 7 लेंगे, b लेंगे 3, तब हम पहले इसको देखेंगे क्या a माइनस b किसके बराबर आ जाएगा। सो दैट इज 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। बट जब हम b माइनस a करेंगे तब देखते हैं वैल्यू क्या आ जाएगा। तो b माइनस करते हैं, दैट इज 3 माइनस 7, सो दैट इज इक्वल टू माइनस 4। ये दोनों आपस में इक्वल है ही। जब इक्वल नहीं है तो इसका मतलब हुआ a माइनस b माइनस a के बराबर नहीं है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं होल नंबर, यहाँ में इंटीजर आ रहा है, तो वहां पर ये होल्ड नहीं हो रहा। तो यहाँ आपके यहाँ लिखा हुआ है द प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर द सबट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स। जब भी आप सबट्रैक्ट करोगे होल नंबर्स को, तब कभी भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी, ये होल्ड नहीं होगी। ये है हमारा पोर्शन किसके लिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एंड सबट्रैक्शन। नाउ अब लग रहा होगा कि आपको यहां तक समझ आया होगा कि ये चीजें कैसी। अब यहां पर हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है, दैट इज आवर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हमें करनी है यहां पर। सो दिस इज आवर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मगर ये पढ़ेंगे हम एडिशन। पहले हमें दो ही पढ़नी है, एडिशन और सबट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। सबट्रैक्शन की नहीं, क्योंकि वहां पर वो होल्ड नहीं करेगी।
सो अब देखते हैं यहाँ पर। सो इसमें क्या है, अगर हम ग्रुपिंग करेंगे, अगर हमारे पास 3 नंबर्स होंगे से ए बी एंड सी, ये 3 नंबर्स हैं, अब इनकी ग्रुपिंग करेंगे, फिर दूसरे साइड अलग ग्रुपिंग करेंगे, क्या उन दोनों 3 इन ग्रुपिंग्स में सम हमारा ठीक निकलेगा कि नहीं, बराबर निकलेगा कि नहीं। लाइक वी हैव ए प्लस बी प्लस सी, अगर हम इन दोनों को पहले ऐड करेंगे फिर उसके साथ सी ऐड करेंगे, क्या वो है ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा कि नहीं। अब हमें ये देखिए, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे, उसके साथ ये इसका रिजल्ट ऐड करेंगे, फिर उसके बाद इन दोनों का रिजल्ट ए के साथ ऐड करेंगे, फिर हम देखेंगे क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा कि नहीं। अगर ये हुआ तो इसका मतलब हुआ ये होल नंबर्स के लिए होल्ड करेगा। सो विल टेक ए सिंपल होल नंबर से ए का वैल्यू लेंगे 1, बी का वैल्यू लेंगे 2 और सी का लेंगे 3। अब हम देखते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड। So our left hand side is equal to a plus b plus c. So replace a by 1, we will get 1 plus 2 plus 3. So this will be 1 plus 3, 1 plus 2 is 3, that is 3 plus 3 and equal to 6. तो लेफ्ट हैंड साइड हमें 6 आया। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड क्या है। सो राइट हैंड साइड इज a plus b plus c, क्या इसके बराबर आ जाएगा कि नहीं। सो वी विल रिप्लेस a by 1 plus this is our 2 plus 3, so this will be equal to 1 plus 2 plus 3 is 5, 5 plus 1 is 6. So our 6 दोनों की जगह आंसर निकले। This means that our left hand side is equal to right hand side, तो ये होल्ड करेगी। सो जब भी आप एसोसिएट एक ग्रुपिंग नंबर्स की करोगे तब हमेशा उनका सम चेंज नहीं होगा, इक्वल निकलेगा दोनों। So we can say that when we add 3 whole numbers, the sum remains same even when if we change the grouping of the numbers. अगर आपने numbers की grouping यहाँ अलग थी, यहाँ अलग थी, हम अगर इसको change भी करेंगे and we will get the result as same. And this property is known as associative property of whole numbers under addition. So this is our associative property जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, that is if A and B and C are 3 whole numbers, then a plus b, then a plus b grouping with a plus b plus c is always equal to a plus b plus c. इसकी अलग ग्रुपिंग ये हमेशा होल्ड करती। बट अगर हम सब्ट्रैक्शन में देखेंगे वहां ये चीजें नहीं होंगी। से अगर हम एग्जांपल लेंगे अब सब्ट्रैक्शन में, तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, वी विल हैव a माइनस b ग्रुपिंग माइनस c, क्या वो a माइनस b माइनस c के बराबर होगा कि नहीं। और we will take a same example जो हमने प्रीवियस स्लाइड में ली, that is a is equal to 1, b equal to 2 and c equal to 3. So when we take a left hand side, so left hand side is equal to a minus b minus c. So when we replace a 1 minus 2 minus 3, so this will be equal to minus 1 minus 3. So when we discuss in a subtraction, it is a minus b minus c is equal. अब हमने एग्जांपल ली है a, b and c 1, 2, 3, तो अब जब हम subtraction में देख रहे हैं we will get a solution equal to minus 4. Now अब हम देंगे right hand side। अब हम देखते हैं right hand side पे, क्योंकि हमारा left hand side ये है, तो right hand side है a minus b minus c. So now replace a by 1 minus b is equal to 2, 2 minus 3. So this will be equal to 1 minus 2 minus 3 is equal to minus 1. Minus minus plus, so this will be 1 plus 1 and this is equal to 2. Here we get 2, here it is minus 4. Both are not equal. So we can say left hand side is not equal to the right hand side. जब ये नहीं होगा तो इसका मतलब हुआ ये होल्ड नहीं करेगा। यहां पर इसकी एग्जांपल आपको देकर है कि किस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो किसी भी नंबर। नाउ वी हैव अ लास्ट पोर्शन ऑफ दिस, दैट इज आवर property, that is property of 0. And now we will discuss that property of 0. As you see on this page, it is written there as when we add 0 to any number, the value of that number doesn't change. that is the property of 0. So इसको ऐसे भी कह सकते हैं, किसी नंबर को क्या ऐड करेंगे ताकि वो चेंज ना हो, उसका वैल्यू चेंज ना हो।
तो वो एडिशन में क्या होता है, वो होता है 0. सो इफ वी टेक ए नंबर से a इज द होल नंबर, a एक होल नंबर है, अगर हम इसके साथ 0 ऐड करते हैं वो हमेशा ही a रहेगा. इसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 0, और इसमें इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी. किसी नंबर को क्या ऐड करेंगे ताकि उसका वैल्यू चेंज ना हो, वहां हम 0 करेंगे ऐड, जिसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं. तो अगर हम किसी भी होल नंबर को इसी तरीके से, किसी भी होल नंबर को इफ वी टेक एन एग्जांपल से, तो अभी मैंने समझाया था a + 0 वो a ही आ जाएगा. टेक ही है होल नंबर, अगर हम 0 को 0 ही ऐड करेंगे फिर वो 0 आ जाएगा. अगर हम 2 को 0 ऐड करेंगे वो 2 आ जाएगा. अगर हम 3 को 0 ऐड करेंगे वो विल गेट 3. तो वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, वही नंबर. और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं, यही है हमारी प्रॉपर्टी ऑफ 0, और इस 0 को ही हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी. एडिटिव आइडेंटिटी. सो ये आपका यहां पर लिख के है पेज पे, प्रॉपर्टी ऑफ 0. सो किसी भी नंबर व्हेन यू ऐड 0 टू अ होल नंबर, द सम इज ऑलवेज अ नंबर इटसेल्फ. आपको हमेशा वही नंबर हासिल होगा. ये दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स. ये सभी है हमारी प्रॉपर्टी. इसी तरीके से अगर हम एडिशन में देखा, अगर हम आप सब्ट्रैक्शन में भी किसी होल नंबर को 0 माइनस करेंगे, हमेशा हमें वही नंबर मिलेगा. सब्ट्रैक्शन में भी से अगर हम 2 - 0 करेंगे वो भी आंसर 2 आएगा. इसी तरीके से आप कोई भी नंबर लो, उसको 0 माइनस करो, आपको वही नंबर हासिल होगा. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज अ प्रॉपर्टी ऑफ 0, क्योंकि यही प्रॉपर्टी इनको चेंज करने नहीं देती, इनका वैल्यू कहीं पर, वेदर एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में. अब हमारी चेक पॉइंट 2 है, जो चीजें हमने प्रॉपर्टीज में डिस्कस की वो सारी चीजें आपको यहाँ अप्लाई करनी है, और ये आपको घर में खुद करनी है. ये सारी चीजें हमने डिस्कस की. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर है 6, 7, 8, और इसको ऐड करके 8, 5, 8, तो इस यहाँ पर आ जाएगा सीधे 8, 5, 8. इसी तरीके से यहाँ पर कैसे करोगे वो आपको आप खुद कर. सेम इसमें भी आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी करनी है. सो दिस इज आवर a, ये हमारा b है, तो आप a + b कर सकते हो. और यहाँ पर आपको नंबर्स में ग्रुपिंग करनी है और फिर ऐड करें. इसमें आसान है, अगर हम 1 को ऐड 99 से करें 100 आ जाएगा. 2 को ऐड करेंगे 98 से, 3 को ऐड करेंगे 97 को, 4 के 96 से, और 5 को, तो सभी वैल्यूज हमें 100 में मिलेंगे. फिर आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो. और सेम उसके बाद ट्रू फॉलोज है, ये आपको होम असाइनमेंट आप घर में खुद करो. ये थी आपकी चेक पॉइंट 2 तक जो भी प्रॉपर्टीज विद होल नंबर से वो मैंने सारी डिस्कस की. अब इसके बाद हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वो हम आगे पढ़ें.